नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दिस इज हाउ वी स्टार्टेड मध्य प्रदेश फाउंडेशन अबाउट नियरली 10 years बैक। मध्य प्रदेश के सतर्क नागरिकों का संगठन, ए प्योरली नॉन पॉलिटिकल फोरम concerned about not only of Madhya Pradesh but of the country. And you'll be glad to know that most of you have attended our functions also, right from when we called P. Sainath, who spoke on the suicide of farmers. We had General Kapoor, who spoke on the why the youth is not joining army. Then we had globalization and human imagination by Shashi Tharoor. Then last time we had Uttarakhand ki tragedy ke upar. And another very classy event we did, which ultimately became a law, CSR, when Mukesh Ambani spoke for us. This is how we have been doing lots of activities under the leadership of our dynamic president, Vivek Tankha. Vivek Tankha, and we started this forum for the concerned issues of not only of Madhya Pradesh but of the country. We are very fortunate that this year we are talking about our own state. This may be for the first time that we are thinking and talking about our own state problem that has come up, Vyapam. व्यापम पे तो इतने जोक्स चल रहे हैं कि यमराज ने अपने यमदूत से कहा कि तुम कहाँ आजकल दिख नहीं रहे। उनका साहब, व्यापम में इतनी ज़्यादा बिजी हूँ, इतनी मौतें हो रही हैं कि मुझे समय ही नहीं है। दिस इज़ वॉट इज़ व्यापम। वेरी अनफॉर्चुनेट दैट आवर ओन स्टेट, द स्टेट विच वी लव, हैज़ बिन डेंटेड। पर हमें ये खुशी है आज के हमारे बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री मिस्टर अरविंद केजरीवाल who symbolizes the fight against corruption. And this is why we chose, and our patron Digvijay Singh ji is sitting, we thought that Arvind will symbolize the kind of fight we are trying to do under the leadership of Digvijay ji, Vivek Tankha and all others. And we have come to one stage that ultimately the inquiry has been handed over to CBI. But we had already decided about this program long back. Since Arvind has come for the first time, Ajay Mushran was the Minister of Finance under the leadership of Mr. Digvijay Singh for 10 years. And his father was also a finance minister for nearly 20 years. But this family of Narsinghpur, a small town near Jabalpur, for 40 years, this father and son were the ministers of finance, but nobody can pinpoint a single thing against them. They were so honest. They used to own 2 villages. And now they own only 1 village because they have donated most of the things. But these kind of people are not there. And this is why we remember this great soldier, Ajay Mushran, and his family is amongst us. We are very fortunate that Shubha Bhabi is with us, Mrs. Mushran is with us, and the family. We salute this soldier and one of the greatest finance minister under the leadership of Digvijay ji was with us. Now I am requesting one of our member, Amna, to please request Mr. Kejriwal, because Kejriwal ji is to go back because he has invited lots of people in his own house for iftar party. So we have requested him to speak on the corruption in education. Now I'll request Vivek Bhai to please come here, and Amna to please come and give a bouquet to Mr. Arvind Kejriwal. भ्रष्ट जहां नेतृत्व हो, भ्रष्ट जहां सरकार, वहां सत्य और न्याय की बातें हैं बेकार. और दिस इज वाई अरविंद इज our Chief Minister of Delhi, and Arvind is with us, the people of Madhya Pradesh, talking against corruption in education. Now, before Arvind comes, please sit, Arvindji. I am requesting our President, Mr. Vivek Tankha, to welcome you all and say a few words about the program and about Arvind Kejriwal. Please. I'm going to be very brief because I know Arvindji has to go. He has an iftar party and half of Delhi is invited there. Respected Arvindji and respected guests, Madhya Pradesh Foundation has a very special place in the hearts of all of us. You can say everybody who belongs to Madhya Pradesh and who's in Delhi is like connected with us. Whether it's doctors from AIIMS,
whether it's PGI, then anybody around in this NCR has been part of us. Why Vyapam? I have been fighting this issue for now nearly 2 years. But I have young friends who've been fighting it for a much longer time. And these people are brave hearts. I know how much insecurity they have felt. I know there were times when by few hours I managed to get them a court order, otherwise they would have been behind bars. The whole establishment was against them. We were all thinking that what will happen in this fight, whether we'll ever succeed. When we filed these petitions in Supreme Court, we didn't know that the national press would take it up. We didn't even know that these deaths are going to matter to the national press. Because I had written an article on 3rd of June, which is an editorial in Hindustan Times, and Dainik Bhaskar took it as an editorial in Madhya Pradesh, where 35 deaths had taken place by that time. Even that didn't matter. But somehow, providentially, but unfortunately for people of Madhya Pradesh, more deaths took place. And the national press took up the issue. And then it's the power of the media, power of our whistleblowers, and then the courts finally woke up. And today we have first semblance of hope that we might get justice in Vyapam. It's too early. The days are too early. This function today is actually dedicated to our 4 whistleblowers who have shown exemplary courage. May I request them to come here, please, all 4 of them. Prashant Pandey, Ajay Dubey, Anand, and Ashish. Please come here. Come. I know each one of them. They are dead, honest young people. Dead, honest young people. They were scared. Half the time they were sitting in my office for security. They've been scared to go back to Madhya Pradesh at times. Mrs. Jai Singh knows. I mean, she was in touch. We were talking all the time on these issues. So we had taken a call much before all this has happened that today we were going to put them on center stage. This has nothing to do with the case now. This decision was taken 1 month back. But as I said, things peaked. We got relief from Supreme Court. Of course, Digvijay ji was a great pillar of strength in this whole fight. And today, we have another person who's led a civil rights movement in Delhi as a shining example amongst us today. Actually, I'm looking at something like that in Madhya Pradesh. A civil rights movement to be led by the whistleblowers. With these words, I request Arvind ji, because I know you have to leave at 6:30. सब लोगों को मेरा नमस्कार। विवेक तनखा जी बहुत अच्छे मित्र हैं। आज उन्होंने इनवाइट किया तो आना ही था, और टॉपिक इतना अहम है जिससे हम सब लोग जुड़े हुए हैं इस मुद्दे से। शिक्षा में भ्रष्टाचार और उसमें भी व्यापम में जो कुछ चल रहा है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। इसके पहले सरकारों में हम देखते थे भ्रष्टाचार तो था, बहुत लूट खसोट थी, डाका डाल रही थी सरकारें, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा, जो भी गवाही देगा, जो भी रिपोर्टिंग करेगा, उसका कत्ल कर दिया जाएगा। इतने लोग मर चुके हैं। अब मुझे लगता है हम सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। अगर इस टाइम हम लोग सब साथ नहीं आए तो बहुत देर हो जाएगी। सबसे पहले मैं इन चारों युवाओं को सैल्यूट करना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है, और जैसे भी विवेक तनखा जी ने कहा, ये वक्त है जब जुडिशरी, मीडिया और जनता, इनको सबको साथ आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस तो सौंप दिया है, पर फ्रैंकली मैं सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक शक है कि सीबीआई भी कितना करेगी। आखिर सीबीआई भी तो उन्हीं के कंट्रोल में है। क्या सीबीआई के बाद भी सच निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, एक मन के अंदर थोड़ा सा संकोच है। एक छोटी सी निवेदन मीडिया वालों से है
अक्षय सिंह की मौत हुई, उनकी जो फियांसी है उसके पास कुछ सबूत हैं और वो दर दर की ठोकरें खा रही है। अगर आप में से कोई हिम्मत करके उसकी बात को पूरे देश के सामने पहुंचा सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। किसी की भी मौत बेकार नहीं जानी चाहिए, मौत होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हुई तो बेकार नहीं जानी चाहिए। उसने जिस चीज़ के लिए अपनी जान गंवाई है उस मुद्दे को आगे तक ले जाना हम सब लोगों का फ़र्ज़ है। जहाँ मध्य प्रदेश के अंदर एक और बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है, वहीं दिल्ली के अंदर एक आशा की किरण भी है। दिल्ली के अंदर असूलों के ऊपर, वैल्यूज़ के ऊपर, भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली के लोगों ने जनमत दिया है, दिल्ली के लोगों ने वोट दिया है और भारी बहुमत से 70 में से 67 सीट कभी सुनी नहीं थी, इतनी भारी बहुमत देके आम आदमी पार्टी को जिताया है। यह आप सब लोगों की जीत है, हम सब लोगों के लिए एक सुनहरी मौका है। और जब से सरकार बनी है कोशिश कर रहे हैं हम लोग, रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि जो जनता ने भरोसा दिया उसको पूरा कर सकें। तो जो शिक्षा में भ्रष्टाचार की बात है, हम सब लोग जानते हैं कि शुरू से ही नर्सरी से लेके भ्रष्टाचार शुरू होता है, नर्सरी से लेके डोनेशन शुरू होते हैं। इसको अभी नई नई हमारी सरकार बनी है, कोशिश की है हम लोगों ने। जहाँ जहाँ 2-3 स्कूल ऐसे थे, जैसे हमें पता चला, जो लोग हमें थोड़ा बहुत सबूत दे के गए कि यहाँ पे डोनेशन लिया गया, वहाँ डोनेशन लिया गया, तुरंत उस स्कूल के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई करके उसको बंद कराने की कोशिश की। अब प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में दिल्ली स्कूल एक्ट जो है उसको अमेंड करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि दिल्ली के स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद हम कॉलेजेस के अंदर जाते हैं, उसके अंदर बहुत भ्रष्टाचार है, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सब लोगों का सहयोग चाहिए दोनों तरह से। एक तो आपके आइडियाज़ चाहिए, जो भी आप लोगों के आइडियाज़ हैं आप हमें आइडियाज़ दीजिए, उसको लागू करने के लिए सरकार हमेशा तत्पर है। हम लोग आपके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और दूसरा, फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन में आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। और मुझे लगता है कि दिल्ली से हम एक ऐसा मॉडल पूरे देश को दे सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा 106% हमने दिल्ली में शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी की है, आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ। पहले जो एजुकेशन में काम करने वाले एक्टिविस्ट्स हैं वो आवाज़ उठाया करते थे कि अगर टोटल बजट का 6% शिक्षा पे खर्च हो जाए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़ी क्रांति आ जाएगी। कोई कहता था 7% अगर खर्च हो जाए। दिल्ली सरकार का 40,000 करोड़ का टोटल बजट है, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए शिक्षा पे, 25% टोटल बजट शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो 6-8% तो बहुत छोटी चीज़ रह गई है। 25% टोटल बजट दिल्ली का शिक्षा के ऊपर खर्च हो रहा है। और तो मुझे मतलब ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि जो नई सरकार है दिल्ली के अंदर वो शिक्षा को कितना महत्व देती है। लेकिन अब हमें ये इंश्योर करना है कि ये पैसा सही जगह पहुँचे, नंबर एक। और दूसरा, जो शिक्षा का कॉमर्शलाइजेशन हो गया है, शिक्षा को दुकान बना लिया है कुछ लोगों ने, और केवल दुकान नहीं, जो शिक्षा को बेसिकली गुंडागर्दी का एक पूरा स्टेज बना लिया है, उसे भी अपने को रोकना है, जिसके प्रति आम आदमी पार्टी की नई सरकार पूरी तरह से समर्पित है। और केंद्र में बैठी सरकार पूरी कोशिश कर रही है हमारी ऐसी तैसी करने की। रोज़ आप पढ़ते होंगे, लेकिन हम भी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। हमने आने के बाद भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के कई सारे कदम उठाए। तो सिस्टमिक चेंजेस तो करने ही होते हैं, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार करे उसे सज़ा मिले, ये मैसेज बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अपने को सबको जेल नहीं भेजना, सारे जेल चले गए तो फिर ठीक नहीं है, लेकिन अपने को माहौल ऐसा पैदा करना है कि लोगों के मन में डर पैदा हो जाए कि अगर मैंने चोरी की तो मैं जेल जाऊंगा। ये डर पैदा करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमारी सरकार बनी तो ये डर आया, कुछ महीनों तक आया, लेकिन अब उन्होंने, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज के केंद्र सरकार ने हमारी एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर ही कब्जा कर लिया है। कभी सुना आपने भारत के इतिहास में ऐसा हुआ हो कि एक चुनी हुई सरकार की एक डिपार्टमेंट के ऊपर दूसरी सरकार ने
अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस और अपनी पुलिस भेज के उस पर कब्जा कर लिया हो। मैं जिस कमरे में बैठता हूं, जो मुख्यमंत्री का चेंबर है, मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे हमारी होम मिनिस्ट्री है। उस होम मिनिस्ट्री के ऊपर दिल्ली पुलिस को भेज के केंद्र सरकार ने पिछले 1 महीने से कब्जा किया हुआ है। होम मिनिस्ट्री के ऊपर कब्जा कर लिया, हमारी एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर कब्जा कर लिया। तो फिर आडवाणी जी जब इमरजेंसी की बात करते हैं तो फिर क्या गलत कहते हैं। लेकिन अपने को इसी के अंदर से रास्ते निकालने हैं और ज़रूर रास्ते निकलेंगे। कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत मन कर रहा है आप लोगों के साथ बैठूं, लेकिन आज मजबूरी है। मैं ही होस्ट हूं आज रोज़ा इफ्तार पार्टी का, और अगर मैं वहां नहीं मिला तो बड़े जूते पड़ेंगे सभी गेस्ट से। आज मुझे माफ़ कर दीजिए, फिर किसी दिन आपके साथ तसल्ली के साथ बैठ के बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, मुझे इज़्ज़त बख्शने का। थैंक यू सो मच। अरविंद, आप 1 मिनट रुकिए। उस दिन खुदा ने भी जश्न मनाया होगा जिस दिन उसने अरविंद को बनाया होगा। उस दिन खुदा ने भी जश्न मनाया होगा जिस दिन उसने अरविंद केजरीवाल को बनाया होगा। पर उसने भी बहाए होंगे कई आंसू जब उसने इसे भेजकर खुद को अकेला पाया हो। Wish you all the best. We will again have you. Madhya Pradesh Field Foundation will again invite you for a long lecture. Thank you very much.